bit of probability basics, right? And हमने वो basic worksheet शुरू किया था, and we wanted to continue with that basics worksheet, right? Yes or no, guys? बताओ बताओ, आया ना? Someone just unmute and speak up. I need. Yes, sir. Yeah, yeah. Cool. बताओ बताओ, कितने लोगों ने कोशिश किए यार उसके questions? बताओ यार. How many of you all tried a few questions from there? Yeah. So will today's class be related to the previous class, because I haven't watched that yet? यार अगर आपने नहीं भी देखा है तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी. आई एम श्योर. लाइक हमने बेसिक प्रोबेबिलिटीज ही डिस्कस की थी. देखो ये डेक ऑफ कार्ड, सेट थ्योरी याद है ये सब? हाँ. राइट. तो आई डोंट think it's going to be a big problem even if you have not attended the previous class. Yeah, but it was suggested कि बाद में देख लेना recording. ठीक है सर? जो आपने एक्सेल शीट बताई थी, बेसिक्स वर्कशीट, दैट इज अवेलेबल टू ओनली दोज पीपल ना जिन्होंने CS1 कोर्स लिया है. सो आई एम CM1 कोर्स का पर्सन जो कि बेसिक ऑफ स्टैट्स के लिए क्लासेस अटेंड कर रहा है. सो आई नीड दैट बेसिक्स वर्कशीट सेपरेटली. ओके, मैं आज कल सुबह तक डलवाता हूँ. ठीक है, CM1 वाले में. ओके ठीक है ठीक है. यहाँ पे कितने लोग CM1 वाले हैं यार? Sir, the worksheet is available for CM1 students as well. अच्छा, Under उसमें भी है क्या? CM1 soft copy, under study material, there's a basic worksheets करके that you can access for the basic worksheet. It has देखना the यार same एक बार, questions. क्योंकि I don't have access to the CM1 actually, तो I can't really look, check and let you all know. But ऐसी बात है तो एक बार please can the rest of you all check, maybe go to the CM1 का soft copy study material section, right? Have a look. I think you'll find something called basic worksheets, right? If that's the case, that should solve that. Yeah, cool. All good. Shall we start? Today I wanted to do what I wanted to just get through these questions in the class, right? If there's any specific questions जहाँ पे अपने ज़्यादा अटके हैं maybe करते वक्त, तो we'll pay a bit more attention to that, yeah, and try to get through it. Okay, so hope you all can see my screen and everything. Can me screen visible, guys? Yeah, cool, perfect. Let's have a look. क्या लिखा हुआ है यार question में? Third question पे आते हैं. A contestant on a game show is asked 2 questions. The probability that she gets the first question correct is 0.3, and the probability that she gets the second question correct is 0.4. Given that the probability that she gets both the question correct is 0.1, तो पहले क्वेश्चन को करेक्ट करने का probability 0.3 है, दूसरे को करेक्ट करने का 0.4. दोनों क्वेश्चंस करेक्ट हो जाए उसकी probability 0.1 है. Calculate the probability that she gets either the first, the second, or both the questions right. Now again, can I think of it as set theory? बताओ तो. Tell me guys. इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं. Probability of A क्या दिया गया अपने को? बताओ बताओ बताओ. What's the probability of getting the first question right, guys? 0.3. 0.3. Okay, this is 0.3. What's probability of B? 0.4. और ये चौथा एक तीसरा सॉरी एक नंबर दिया हुआ है, ये 0.1. ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी है? इंटरसेक्शन. बहुत बढ़िया. अपने को क्या निकालने को बोला है पार्ट 1 में, ये बोल दो अब. A union B. Union B, perfect. Yeah, Shurudeep, these are available if you go to the dashboard, soft copy, study material, right? You'll see something called basics worksheets. उसमें ये questions available है, whether you are doing CM1, CS1, दोनों के लिए available है. Yeah, cool. Yeah, so A union B इसका formula हमने सीखा था, क्या था? 0.3 plus 0.4 minus 0.1, so that gives us 0.6. Part 2 में क्या लिखा हुआ है? She gets both the questions wrong, which means this बाहर वाला probability, हाँ कि ना? Tell me guys, yes or no? Yes, sir. Yeah, which is what? 1 minus probability of what? A union B, right? Which is equals to 0.4. Clear है? इसमें किसी को कोई doubt नहीं था? Here I am trying to breeze through these questions, assuming that you all have already tried it once. तो
कोई छोटी मोटी दिक्कतें होगी तो सॉल्व हो जाएंगी, बट अगर कुछ मेजर इशू था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फील फ्री टू इंटरप्ट मी, राइट? परेशान करो, कोई दिक्कत नहीं है, या सो लेट मी नो इफ देयर इज अ बिग प्रॉब्लम और एनीथिंग इन एनी ऑफ दीस क्वेश्चंस, या कूल। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, क्या लिखा हुआ है? कस्टमर्स एट अ रेस्टोरेंट में ऑर्डर any combination of chips, salads or onion rings. So the probability that the customer chooses onion rings is this, salads is this, chips and salad is this, chips and onion rings is this, salads or onion rings is this, all three is this, none of the above is 0.2. Calculate the probability a customer chooses chips only. Okay, now instead of 2 events, you've been given how many events? Tell me guys, how many events have been given? 3, right? So instead of just drawing 2 circles, I'm going to draw how many circles? 3 circles, right? I've been given what? Chips, salad, onion rings. What is the probability that a customer chooses onion rings? Probability of O they've given me is 0.3. Now tell me guys, अगर मैं शेड करूं तो कौन सा पोर्शन होगा? क्या ये O का पूरा सर्कल का probability दिया है मुझे, कि केवल इतना probability दिया है? बताओ कितना probability दिया है? क्या ये वाला भी दिया है? पूरा हो पूरा O का दिया है ना, है ना? अग्रीड गाइस, पूरे O का प्रोबेबिलिटी दे दिया। सब लोग विजुअलाइज कर पा रहे हो? विजुअलाइज करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। टेल मी गाइस, या पूरे O का प्रोबेबिलिटी देके रखा है। सो दिस इज व्हाट आई हैव बीन गिवन इज 0.3। कूल। व्हाट्स नेक्स्ट? नेक्स्ट आई हैव गिवन सैलड इज दिस, चिप्स एंड सैलड इज दिस। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैलड दे दिया है क्या? 0.4। सो अगेन दिस इज व्हाट, if I think about it, this thing right here is this thing, correct? बताओ हाँ कि ना? Yep, same logic. Then they have given chips and salad. Chips and salad कौन सा पोर्शन हो गया? ये वाला पोर्शन हो गया, देखो बताओ। Yes. या ऐसा तो नहीं कहा ना कि चिप्स एंड सैलेड एंड नॉट अनियन रिंग्स? मुझे ये कह दिया तो मैं बस यही लिखूंगा कि ये चिप्स एंड सैलेड है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एस दे दिया इन्होंने, क्या है? 0.15। एक और चीज दिया है, चिप्स एंड अनियन रिंग्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ओ इज गिवन एज 0.15 अगेन। प्रोबेबिलिटी ऑफ तीसरा वाला क्या है? सैलेड और अनियन रिंग्स, मतलब सैलेड और इंग्लिश वाला और अनियन रिंग्स मतलब इंटरसेक्शन यूनियन, क्या है ये? Union. Salad and onion rings is given as 0.55, and finally all three मतलब बताओ, all three मतलब O इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन S, या? So इतनी चीजें मुझे दे दिया। मुझे क्या कैलकुलेट करना है पहले पार्ट में? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चिप्स। चलो सोचो कैसे करोगे, क्या मुझे दिया गया है, क्या मुझे नहीं? एक और चीज दिया गया है, टेल मी क्या दिया गया मुझे एक और? जो तीनों में से किसी को भी सिलेक्ट ना करे उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2। कूल। सो कैन आई से 0.2 इज नथिंग बट 1 माइनस तीनों का यूनियन, हाँ कि ना? यस और नो गाइस? Yes. ये 0.2, ये वाला जो प्रोबेबिलिटी है ये 0.2 दिया है मुझे, तो 0.8 इज सी एस एंड ओ का यूनियन, राइट? So let's start off with that maybe. Okay, let's start off with that logic कि I have been given the union of C, S and O to be equals to 0.8. Everyone agrees to this? Yeah. Now if I think about it, this is probability of C plus probability of S plus probability of O. अब कुछ कुछ पार्ट 2 बार गिने गए हैं, कुछ कुछ पार्ट 3 बार गिने गए हैं। अगर आप लोग ध्यान दो, ये वाला पार्ट 3 बार गिना गया होगा, हाँ कि ना? यस और नो गाइस? या यस राइट? एंड ये वाले जो पार्ट्स हैं ये 2 बार गिने गए होंगे। अग्रीड? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे जो 2 बार गिने गए हैं
उनको एक एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सी यूनियन ओ, सॉरी सी इंटरसेक्शन ओ माइनस व्हाट, C intersection S. एक बात बताओ, तीनों इंटरसेक्शन चाहिए होंगे मुझे, क्या तीनों इंटरसेक्शन है मेरे पास? Sir, we don't need S intersection O, right? ओके, और यू कैन फाइंड एस इंटरसेक्शन ओ, Yes. या बिकॉज यू हैव एस यूनियन ओ, you have O यहाँ पे probability of O and probability of S, right? So you can find S intersection O. Correct? Yes. Yeah? Does that make sense to everyone? Tell me guys, or you can argue, ठीक है, I'll come to different ways of solving this as well, but मतलब एक लंबा तरीका पहले कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका भी सोचेंगे। S इंटरसेक्शन O आप लोग सोच सकते हो कि 0.3 प्लस 0.4 माइनस 0. सॉरी उल्टा कर लिया मैंने। Sir, थोड़ा fast जा रहे हैं हम. Can we just slow up our Sure. pace? Can we? Sure. Cool. पहले मैं ना ये लिख लेता हूँ, यहाँ तक क्लियर है? बताओ, ये सारा इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दिया गया था मुझे ये निकालना है। अब ये निकालना है तो मुझे डायरेक्ट तो कहीं कुछ दिया नहीं है, बट मुझे ये दिया गया है। करेक्ट? यहाँ तक क्लियर है? टेल मी, इज दिस पार्ट क्लियर? ओके। अब इसका क्या फॉर्मूला होता था? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन ओ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ओ। लास्ट में क्या करूंगा बताओ? अब मैंने जब तीनों चीज सब्ट्रैक्ट की तो मैंने ये वाला पार्ट, ये बीच वाला पार्ट कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर दिया? 3 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, हाँ कि ना? बोलो यार। Yes, sir. बट मुझे 2 ही बार सब्ट्रैक्ट करना था, क्योंकि पहले क्या हुआ था, वो पार्ट 3 बार ऐड हुआ था। मुझे 2 बार सब्ट्रैक्ट करना चाहिए था, क्योंकि उससे क्या होता है, 1 बार रह जाता। बट मैंने 3 बार सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो मुझे लास्ट में क्या करना पड़ेगा? उस पार्ट को ऐड करना पड़ेगा। Tell me guys, yes or no? This part is clear? Any questions? Cool. If this is fine, then now probability of C is unknown. S और O क्या दिए गए हैं मुझे? 0.4 प्लस 0.3 माइनस C इंटरसेक्शन O क्या दिया हुआ है? 0.15. S intersection O नहीं दिया हुआ है, but can I say S intersection O is nothing but S union, sorry, not S union O, क्या होता है बताओ? Tell me, is this probability of S plus probability of O minus probability of S union O? Tell me guys, yes or no? Yes. Yeah? क्लियर है ना यहाँ तक? इसमें किसी को कोई भी दिक्कत? फिर C इंटरसेक्शन O दिया हुआ है 0.15, या एंड तीनों का एडिशन दिया हुआ है 0.05. Now you can solve for this. या ये तीनों मुझे मालूम है, सॉल्व करके बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ C क्या आ रहा है? LHS मालूम है 0.8 है, राइट? टेल मी व्हाट इज दिस कमिंग आउट टू बी? प्रोबेबिलिटी ऑफ चिप्स क्या आ रहा है? हाँ सारा बोलो, कुछ कह रहे हो आप? जीरो 0.5 आ रहा है क्या सबका? या 0.5 ही आएगा, परफेक्ट, कूल. Everyone getting the same answer guys? Tell me yes or no? Yeah? Cool. Then they are saying chips only. Chips only मतलब ये वाला पोर्शन का प्रोबेबिलिटी निकालना है मुझे. कौन सा वाला पोर्शन? This portion right here. या कि चिप्स, केवल चिप्स खाता हो वो, सैलेड अनियन कुछ ना ले, या सैलेड और अनियन भी कुछ ना ले, चिप्स और सैलेड भी ना ले, वो सब काम करना है मुझे. तो मैं क्या करूंगा बताओ? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ओनली? एनीवन?
देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी तो आएगा ही, उसमें माइनस क्या क्या करना है? So C intersection S, C intersection O, and then we हम्म। have to add the union. चलो अरे, ये तो मैं मान intersection. गया कि सी इंटरसेक्शन एस काटना है और सी इंटरसेक्शन ओ भी काटना है। आपने लास्ट में कहा कुछ ऐड भी करना है, वो क्यों करना है यार? उसका क्या लॉजिक हुआ? So the intersection thing, because we have like subtracted it twice, so we'll have to add it once. तो आप कह रहे हो कि मैंने जब पूरे में से ये एक पोर्शन, सॉरी ये एक पोर्शन था जिसको सब्ट्रैक्ट करना था, ये एक पोर्शन था और ये वाला एक पोर्शन था, राइट? ये तीनों पोर्शन को सब्ट्रैक्ट करना था। मैंने जब ये वाला लिया, एक इंटरसेक्शन लिया, तो ये वाला सब्ट्रैक्ट हो गया, राइट? ये इंटरसेक्शन लिया, ये वाला भी सब्ट्रैक्ट हो गया, बट ये वाला पोर्शन 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गया, एकदम बीच वाला पोर्शन, करेक्ट? एक ही बार सब्ट्रैक्ट होना था, वो 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गया। तो मैं एक बार को क्या करूंगा? ऐड बैक कर दूंगा, राइट? एंड दैट मिडिल पोर्शन इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ C intersection S intersection O. Agreed? So 0.5 minus 0.15, right? Minus 0.15 plus 0.05. That will give me what? 0.3, 0.3.25. Yeah. Agreed, guys? Any questions? Shall we move on to the next question? Cool. Let's have a look at the next question quickly. In a group of 24 actuaries, 20 worked for life office A, 12 worked for life office B. Everyone in the group has worked for at least one of the two companies. तो ऐसे कोई नहीं है कि दोनों के लिए काम नहीं किया है. What is the probability that an actuary picked at random has worked life office A and life office B? तो आपके पास दो टाइप के एक्चुअरीज है जो ए के लिए काम किए, बी के लिए काम किए हैं. पी ऑफ ए नहीं दिया हुआ, आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ ए. नंबर ऑफ ए क्या दिया गया? 20. नंबर ऑफ बी क्या दिया गया? 12. यस और नो? एन ऑफ ए यूनियन बी क्या दिया गया? बताओ तो. 24. तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 20 plus 12 minus 24 which is equals to 8. तो मुझे ये पता चल गया हर क्वाड्रेंट में कितने लोग हैं. सो आई हैव 12 people here, 8 people here and 4 people here. Correct? Yes or no? In each of them mutually exclusive zones. Yes, sir. Yeah. अब क्या लिखा है? What is the probability that a randomly picked actuary has worked for life office A and life office B? तो probability of A intersection B क्या हो जाएगा? Number of A intersection B divided by total number of people. Total number of people 24, तो 8 by 24 हो गया, 1 by 3 हो गया, right? Part 2 में life office A given that they work for life office B, तो probability of A given B निकालना है. इसका कुछ तरीका सीखा था क्या हमने? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसको कह रहे थे ना हम, एकदम बेसिक्स में सीखा था. बताओ A given B का प्रोबेबिलिटी क्या सीखा था? Probability of A intersection B divided by probability of Probability of B. B. Perfect. चलो बढ़िया. तो probability of A intersection B हमने ऊपर निकाला है 1/3. B का क्या हो जाएगा? B क्या हो जाएगा? 4 by 24. नहीं सॉरी 12 by 24. My bad. 12 by 24. 12 Yeah. by 20. 12 by 2 24. by 3 answer. 2 by 3 होगा क्या? Yes. चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं क्विकली. अगेन गाइस फील फ्री टू स्टॉप मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. अगेन आई एम अज्यूमिंग दैट यू ऑल हैव ट्राइड एट लुकिंग एट दीस क्वेश्चंस, so जिसमें ज्यादा दिक्कत हो प्लीज फील फ्री टू इंटरप्ट मी, राइट? फिर क्या लिखा हुआ है? कार्ड इज पिक्ड फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पैक ऑफ 52 कार्ड्स. लास्ट क्लास वी रिवाइज एक ऑर्डिनरी पैक कैसा लगता है विदाउट रिप्लेसमेंट. जब रिप्लेसमेंट हो तो वापस 52 कार्ड्स हो जाते हैं. जब रिप्लेसमेंट ना हो तो क्या होता है? एक कार्ड कम हो जाता है ना एक्सिस्टिंग डेक में, करेक्ट? हाँ कि ना? ये फर्क होता है ना. तो जैसे आप पहले अगर आपने उठाया तो रेड का आने का प्रोबेबिलिटी हाफ है. क्यों? क्योंकि 26 by 52 होता है. दूसरे बार रेड उठाने का प्रोबेबिलिटी फिर इस पे डिपेंड करेगा कि पहला वाला रेड उठा कि ब्लैक उठा. डिनोमिनेटर तो एनीवे 51 हो ही जाएगा क्योंकि कार्ड 51 बचे. न्यूमरेटर में या तो 26 रहेगा या 25 रहेगा डिपेंडिंग ऑन पहला कार्ड रेड था कि सॉरी रेड था कि ब्लैक था. हाँ कि ना?
टेल मी गाइस, यू ऑल अग्री टू दिस पॉइंट? बोलो या कूल। ये लॉजिक याद रखना कि विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का फर्क ये है, राइट? सो दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड। कभी कभार अपने कंफ्यूज हो जाते हैं एक सिंपल चीज में कि ले दे के कुछ नहीं है, वो कार्ड आप वापस रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो उसके बारे में। तो उससे क्या इफेक्ट होता है? डिनोमिनेटर इफेक्ट होता है और न्यूमरेटर में अपना आने वाला पॉसिबल नंबर इफेक्ट होता है। तो पहले पार्ट में लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी दैट 2 रेड कार्ड्स आर पिक। देखो 2 रेड कार्ड्स कब क्या होगा? व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड इज रेड इनटू सेकंड कार्ड इज रेड। हाँ कि ना? दोनों इंडिपेंडेंट है एक तरीके से। टेल मी गाइस, पहले वाला कार्ड रेड आया फिर दूसरे वाला कार्ड भी रेड आया। पहले वाला कार्ड रेड आने का प्रोबेबिलिटी 26/52। अच्छा, अगर पहले वाला रेड आ गया है तो अब रेड कितने बचे हैं अपने पैक में? 25. 5. और पैक में टोटल कितने कार्ड्स बाकी हैं? 51. सही है, cool. So far so good guys. Any questions? Can you all think of it in a combinations related way? Can you think of it as 26C2 divided by 52C2? वैसा भी सोच सकते हो ना कि 26 में से 2 उठाए डिवाइड बाय 52 में से 2 उठाए। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ पिकिंग 2 cards from 52 cards, total and total number of possible ways of picking 2 red cards, right? तो 26C2 divided by 52C2 ऐसा भी इसको सोचा जा सकता है, right? A lot of the times we also brought in combinations in these things. Okay? Probability of one of each color part 2 में लिखा हुआ है, मतलब 1 red card and 1 black card, right? या अब ये कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट कार्ड इज रेड, right? And second card is what? Black. Black, plus the probability that first card is Black. और second card is red. ऐसा हो सकता है ना? ये दोनों इससे केसेस फर्क पॉसिबल है। पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा कि 2 बार आ जाएगा सेम प्रोबेबिलिटी, राइट? इसमें 26/52 इंटू 26/51, राइट? प्लस 26/52 इंटू 26/51, 2 बार आ गया ना वो प्रोबेबिलिटी। समझ गया? या तो दोनों कॉम्बिनेशंस लेना होगा कि पहले रेड आया फिर ब्लैक आया, फिर पहले ब्लैक आया फिर रेड आया, क्योंकि इन्होंने ये नहीं कहा है कि ऑर्डर डिफाइन नहीं किया, वन ऑफ ईच कलर का है बस। अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चंस गाइस? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन? दे आर सेइंग a box of chocolates contain 8 milk chocolates and 4 plain chocolates. A chocoholic eats 3 chocolates. Calculate the probability that all 3 are milk chocolates. Exactly 1 is a plain chocolate. पहले वाला आप लोग बताओगे कैसे किया आप लोगों ने? एक बॉक्स ऑफ चॉकलेट है, उसमें 8 मिल्क है, 4 प्लेन है, राइट? 8C3 divided by 12C3. ओके, पहले वाला में आप कह रहे हैं कि टोटल वेज ऑफ पिकिंग अप दो 3 चॉकलेट्स फॉर 12C3, उसने क्योंकि तीनों वो उठाए तो 8C3 हो गया, करेक्ट? ऐसा ही ना? डज एवरीवन एग्री विद दिस? बताओ। इसका दूसरा तरीका एक और है, वही 8/12, 7/11, 7/11 एंड 6/10। अग्रीड गाइस? है ना? जो कार्ड्स में अप्लाई किया था, एक मिल्क फिर दूसरा मिल्क फिर तीसरा मिल्क, राइट? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8/12 इंटू 7/11 इंटू 6/10। दैट्स अनदर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द सेम प्रोबेबिलिटी, क्योंकि अगर वो एक खा ले रहा है तो वो बॉक्स से हट गया ना, तो एक तरीके से विदाउट रिप्लेसमेंट वाला चूजिंग हो गया। विदाउट रिप्लेसमेंट में ही अपने कॉम्बिनेशन भी यूज करते हैं, तो वो भी उसी लॉजिक से आया होगा। गॉट इट गाइस? ऑल गुड? Yes, sir. चलो फिर क्या है कि exactly 1 is a plain chocolate। तो इसका मतलब उसने जो पिक किया उसमें कितने मिल्क है और कितने प्लेन है?
2 मिल्क है और 1 प्लेन है आउट ऑफ 8 मिल्क एंड 4 प्लेन्स, तो डिनोमिनेटर में 12C3 रहेगा, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? 4C1 into 8C2. बढ़िया, right? So combinations make it slightly simple. Yeah. Does this make sense, guys? All good? यहाँ पे लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि कॉम्बिनेशन शायद बहुत दिन बाद देख रहे होगे, बट कंफर्टेबल सोफा बताओ। चलो बढ़िया। देन क्या है स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशंस थोड़ा एक बार रिवाइज करवा दीजिए। हाँ देखो कॉम्बिनेशंस का ये लॉजिक होता था, अगर से how should what's the best way to explain it? I'm thinking about it. देखो combination is all about how many ways can you choose something. For example, अगर आपको 3 चीजों में से चूज करने का ऑप्शन मिला कि 3 में से आप कोई भी एक चूज करो, तो आप या तो ए चूज करोगे, या तो बी चूज करोगे, या तो सी चूज करोगे, राइट? यू वेंट टू अ फेयर और समथिंग, राइट? आपको चूज करने को मिला, आप इन 3 में से कोई भी एक गेम खेल सकते हो, तो या तो ए खेल सकते हो, या तो बी खेल सकते हो, या तो सी खेल सकते हो। अग्रीड? यस। या सो देयर आर हाउ मेनी वेज? 3 वेज ऑफ यू मेकिंग अ चॉइस। अग्रीड? या यस। या अगर आपको कोई कहे कि आप इन तीनों में से कोई भी 2 गेम खेल सकते हो, तो अब कितने वे हैं? ए बी, बी सी, ए सी, करेक्ट? सो दे आर हाउ मेनी वेज अगेन? 3 वेज। अगर आप कह सकते हो 3 में से तीनों गेम खेल सकते हो, तो कितने वे है चूज करने के? केवल एक ही तरीका है ना, एबीसी खेलना होगा, तो एक तरीका। सो दिस इज बेसिकली 3C1, this is 3C2, this is 3C3. It basically gives you कि अगर कोई ऑप्शन स्पेस है उसमें से आपको चूज कर रहे हो, तो उसको चूज करने के कितने तरीके हैं। ओके, समझ गए पर्पस क्या था? अब हमारे लिए यहाँ पे ये कैसे यूजफुल है ये समझना अपने लिए जरूरी है, करेक्ट? हमारे लिए ये इसलिए जरूरी है क्योंकि वी आर गेटिंग अ प्रोबेबिलिटी लाइक क्वेश्चन, राइट? जैसे इस केस में यहाँ पे टोटल बॉक्स में 12 चॉकलेट थे, उसमें से किसी ने 3 चॉकलेट खाए, ये बात क्लियर है, राइट? टोटल वो 3 चॉकलेट चूज करने के ये तरीके थे 12C3, है ना? अभी हमने सीखा मेकिंग चॉइसेस, कॉम्बिनेशंस, वो से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 था, वो 1 2 3 कर सकता था, 2 3 4 ले सकता था, 3 4 5 ले सकता था, ऐसे करके 12C3 टोटल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, राइट? है ना? तो वो हो गया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। याद है प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन में क्या होता था? द इंटरेस्टेड नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो अपने इवेंट में डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। यस। तो इसलिए डिनोमिनेटर में क्या आ गया? सारे कितने पॉसिबिलिटी से जिनमें से हम जिन तरीके से हम 12 में से 3 चॉकलेट चूज कर सकते थे, 12C3 हो गया। एक्चुअल में अपने को किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसने एक कितना 3 मिल्क चॉकलेट लिए, और सॉरी दूसरा वाला है ना ये, एक प्लेन चॉकलेट लिया और 2 मिल्क चॉकलेट लिया, राइट? तो अब कितने टोटल मिल्क थे? 8। तो 8 में से 2 लिया और 4 में से 4C1, ठीक है, समझ गए? तो ये टोटल तरीके हो गए हमारे इंटरेस्टेड इवेंट के लिए। इंटरेस्टेड इवेंट के टोटल नंबर ऑफ वेज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वेज की वो सारे 12 में से 3 कर पाता, मिलके वैसे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ओके, यस कूल। एक बात ध्यान रखना, जो मतलब कभी कभार लोग पूछे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या फर्क है। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप गेम ए और बी खेलो या बी और ए खेलो, बात एक ही है ना? Right? It does not matter that you are choosing say milk chocolate number 1, milk chocolate number 2 and milk chocolate number 3.
It matters that you are choosing 3 milk chocolates. Okay, cool. Let's get to the next question. Yeah, question number 8. What does the question say? The question says that students at a performing arts college can choose to study one or more classes of acting, dance, or singing. The probability of students studying acting is this, dancing is this, singing is this, acting or singing, acting और dancing, तो दोनों का यूनियन दे दिया है, तो आप दोनों का इंटरसेक्शन निकाल सकते हो. एक्टिंग एंड सिंगिंग, डांसिंग एंड सिंगिंग, तो एक का यूनियन दिया है तो आप उससे उसका इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, तो आपको तीनों इंटरसेक्शन दे दिए. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट स्टडीज ऑल क्लास. सो tell me if you all agree with me here. You've been given probability of acting is 0.5, you've been given probability of dancing is 0.65, and probability of singing is 0.55. Yes or no? You've also been given probability of acting and singing is equals to 0.25. Probability of dancing and singing is 0.25. Can someone tell me what's the probability of acting and dancing? Tell me. Acting and dancing, 1.35 minus, sorry, 1.15 minus. तो करेक्ट. यस सिद्धि, तो ये 0.5 प्लस 0.65 माइनस 0.8 होगा. बोलो तो. डज एवरीवन एग्री? देखो एक्टिंग और डांसिंग दिया हुआ है अपने को, एक और जगह एक्टिंग और डांसिंग दिया हुआ है. एक्टिंग और डांसिंग का मतलब क्या होता है? 0.8 होता है, विच इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी. तो मैंने वो लॉजिक यूज करके निकाल लिया ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी. यस गाइस, यस और नो? Yes, sir. Yeah. Now let's think about this. तो सारे लोगों को कोई ना कोई एक क्लास तो चूज करना पड़ेगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन डी यूनियन एस क्या हो गया? 1 हो गया. हाँ कि ना? Yes. Yes. Which is equals to 0.5 plus 0.65 plus 0.55, right? Minus 0.25 minus 0. D intersection is 0.5 है. कुछ गलत लिखा है क्या मैंने? हाँ मुझे लग ही रहा था. D intersection is 0.25 है. Cool. 0.25 minus 0.35 plus the required probability A intersection D intersection is क्या आ रहा है भाई बताओ? कोई कुछ कह रहा था यार, सॉरी आई मिस्ड दैट. कूल, ऑल गुड. 0.15 आ गया. और को आप कुछ कह रहे हो? एनी क्वेश्चंस? ऑल गुड. आज अपने कोशिश करते हैं कंप्लीट कर ले. हो सकता है 2-5 मिनट ज्यादा बैठना पड़े, बट ये कंप्लीट करके उठेंगे. ठीक है. 2 डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग ऑफ 5 ऑन बोथ डाइस. एक बात बताओ, पहले डाइस को दूसरे डाइस से फर्क पड़ता है या दूसरे को पहले से फर्क पड़ता है? No. नहीं. कैन आई से बोथ आर इंडिपेंडेंट? तो पहले वाले में 5 है, दूसरे वाले में 5 है. दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6. तो दोनों में 5 है, इनकी प्रोबेबिलिटी 1/6 इंटू 1/6 हो गया. हाँ कि ना? चलो Yes. बढ़िया. क्विक सिंपल, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है? द नंबर 9 बस इज नेवर ऑन टाइम. इट इज ईदर अर्ली और लेट. The probability that the bus is late on any day is 0.6 independent of what day it is. What is the probability that number 9 bus is late on Monday, Tuesday and Wednesday? Okay. Early on Monday, Tuesday and Wednesday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. And early on Monday, Wednesday, Friday and late on Tuesday and Thursday. Cool. The first part. Late on Monday, Tuesday and Wednesday. कैसे calculate करोगे? Quickly बताओ.
0.6 क्यूब। यार फिर एक बात बताओ मुझे ना, जब मैं कभी भी एक क्वेश्चन करता हूँ, मेरे दिमाग में सबसे पहले ये डाउट आता है, यार मैंने थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ये सब के लिए अर्ली की प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं मल्टीप्लाई की? बोलो तो, टेल मी गाइस, टेल मी व्हाई डिड नॉट आई, मतलब इन्होंने कहा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लेट है, तो मुझे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे के लिए अर्ली की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करनी चाहिए थी, ऐसा क्यों नहीं किया? एनीवन? मेरा क्वेश्चन समझ में आया मैं क्या पूछ रहा हूँ? बोलो, मतलब नो सर हाँ हाँ सर मेरा, हाँ आप बोलो जरा। पर उसमें ऐसा हो गया ना कि लेट ऑन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड अर्ली हाँ नेक्स्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो देखो जिनको मेरा क्वेश्चन नहीं सुना है, मेरा क्वेश्चन ये था, यार आप लोग सही कह रहे हो, ठीक है, आपका आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा ये दूसरा पार्ट था कि जब अगर पूछ रहा है लेट ऑन मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, वाई एम एन, अब इसमें आप 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 कर लोगे, एग्रीड, बट फिर आप थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ये चारों दिन अर्ली का प्रोबेबिलिटी भी क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन में क्या ये लिखा है कि लेट ऑन मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे ओनली एंड अर्ली ऑन अदर 4 डेज, बाकी के 4 दिन में कुछ भी आपको फर्क पड़ता है पहले पार्ट में? नहीं। नहीं, तो ये नहीं लेंगे, समझ रहे हो? यही अगर क्वेश्चन में थोड़ा वर्डिंग चेंज कर देता, कह देता लेट ऑन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ओनली, हाँ, और को देखो क्वेश्चन में ये पूछा ना कि लेट ऑन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये पूछा है कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे क्या हो, बताओ नहीं। और को, नहीं पूछा ना, तो उस दिन लेट हो या अर्ली हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं उन चारों दिनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई या कंसिडर भी करूंगा ये निकालते वक्त? नहीं ना? नहीं सर ऐसा यही ही तो अगर सेकंड पार्ट में भी है, उसमें आएंगे, उसमें सेकंड सिर्फ पार्ट में अर्ली अपने का आएंगे, पूछा है। सेकंड पार्ट में आएंगे, ठीक है, अभी ये कर लेते हैं। ओके, ये वाला पार्ट क्लियर है? बताओ पहले, या अगर यहीं पे अगर ये कह देते लेट ऑन मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे ओनली, तो इसका मतलब क्या होता? अपने थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे को अपने को क्या करवाना पड़ता? अर्ली करवाना पड़ता। केवल एक वर्ड कैसे अपना आंसर चेंज कर देता, समझ आ रहा है? गॉट इट गाइस? या कूल। नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्ली ऑन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, तो 0.4 टू दी पावर क्या हो जाएगा? 5 क्या मुझे फर्क पड़ता है सैटरडे संडे क्या हुआ? नहीं, नहीं फर्क पड़ता, मैं उस प्रोबेबिलिटी में जाऊंगा ही नहीं। कोई पूछ रहा था यार इसमें कुछ सेकंड पार्ट में, बताओ क्लियर हुआ? या यस। कूल। अच्छा, लास्ट पार्ट में क्या लिखा है? अर्ली ऑन मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे एंड लेट ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे, तो अर्ली को हो गया 0.4 टू दी पावर 3। और ये 3 ना, और 0.6 टू दी पावर 2। सैटरडे संडे अगेन मुझे फर्क नहीं पड़ता, देख लो अच्छे से, कोई भी दिक्कत है तो बताओ। लास्ट पार्ट में है, fruit machine has 2 wheels, the wheel spin and stop to reveal an object, the probability of getting a cherry on the first wheel is 3 by, sorry, हाँ यार ना, so in the second part I had that been only attached in the second part would have considered late on, correct, yes exactly, राइट यार। फिर आप मतलब वही चीज हो गई ना कि क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना होगा, अपने को ध्यान देके पढ़ना होगा हमेशा। ओके, क्या लिखा हुआ है? व्हील स्पिन हुआ, कोई ऑब्जेक्ट पे लैंड हुआ, चेरी पहले व्हील पे मिलने का प्रोबेबिलिटी 3/10 है, चेरी सेकंड व्हील पे मिलने का प्रोबेबिलिटी 2/5 है। तो ऐसा सोचो 2 व्हील्स है, ठीक है, दोनों में प्राइस चेरी है, पहले वाले में मतलब व्हील को घुमाया तो चेरी मिलने का प्रोबेबिलिटी 3/10 है, सोचो उसमें
10 पोजीशंस होंगे, उसमें से 3 में चेरी होगा, राइट। दूसरे वाले में 5 पोजीशंस होंगे, उसमें से 2 में चेरी होगा, तो उसमें चेरी मिलने का प्रोबेबिलिटी 2/5 है, हाँ कि ना? ये सुनो गाइस, यही है ना Yes. मशीन, उसमें 2 व्हील्स है, दोनों घुमाए, एक में चेरी मिलने का प्रोबेबिलिटी 3%, सॉरी 30%, दूसरे में 40%। फिर क्या लिखा हुआ है? अ चेरी ऑन द फर्स्ट व्हील एंड ऑन द सेकंड व्हील। तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी बताओ, पहली बताओ, ये तो इजी है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3/10 into 2/5. 3/25. चेरी ऑन बोथ हो गया 3/10 into 2/5। पार्ट 2 में देखो, अ चेरी ऑन द सेकंड व्हील बट नॉट ऑन फर्स्ट, तो पहले में क्या होना चाहिए? 7/10 होना into चाहिए। 7/10. परफेक्ट, 2/5 into 7/10। पार्ट 3 में क्या होगा? नो चेरीज ऑन बोथ ऑफ द व्हील्स, तो 7/10 into, Into 3/5. बढ़िया हो गया, अरे तो जल्दी हो गया। सही है, बताओ कोई भी दिक्कत? चलो बढ़िया। कंडीशनल हाँ, प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा कंफ्यूजन था किसमें बताओ? सर। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जैसे हाँ, conditional एग्जांपल में। 6th क्वेश्चन है, तो इसमें 6th के पहले पार्ट में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं है सर? 6 के पहले पार्ट में 2 रेड कार्ड्स वाला। यस सर। तो आप इसमें कह रहे हो कि सेकंड वाला में कंडीशन लगा दो, ऐसा? सर लाइक ऐसे मेरे दिमाग में ऐसा है कि पहले एक हाँ। रेड कार्ड ले रहे हैं, तो एक रेड कार्ड कम हो गया, राइट? तो सेकंड हाँ। वाला डिपेंडेड ऑन द फर्स्ट इवेंट, राइट? ट्रू, इसलिए हमने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को कम किया ना। अच्छा, ओके सर। जिस तो तरीके से ये प्रोबेबिलिटी निकाली, ये ऑलरेडी इट टेक्स इनटू कंसीडरेशन कि पहले एक रेड कार्ड उठ चुका है, हम्म। राइट, तभी ये आया ना। तो इसमें हम कंडीशनल वाला कुछ रूल भी लगा सकते नहीं हैं? यार, इसमें कंडीशनल वाला रूल लगाओ, मतलब लगाने को लगा सकते हो, बट बेकार में कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, वही थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा था इसमें। हाँ, बेकार में कंफ्यूज होने वाला काम है। मतलब यू ओके। कैन, मतलब पहले वाला तो देखो वो है, ठीक है, फर्स्ट कार्ड वाला। दूसरा वाला फिर आप बोलोगे सेकंड रेड गिवन फर्स्ट रेड, राइट। फिर आप इंटरसेक्शन लोगे और डिवाइड बाय फर्स्ट रेड करोगे, राइट। इंटरसेक्शन में वही आएगा 26/52 इंटू 25/51 डिवाइड बाय 26/52 करोगे, तो कोई मतलब नहीं है ना, ओके सर, गॉट इट। राइट। तो करने को कर सकते हो, बट कोई पॉइंट नहीं है करने का। ओके सर। Okay, cool. Any other questions, guys? I think we did it earlier than I expected. Next class अपने एक बहुत ही interesting topic शुरू करेंगे, random variables बोल के। I don't think we have been introduced this topic before ever in high school or college. मतलब college में stats honors वगैरह कुछ होगा तो जरूर किया होगा आप लोगों ने, but otherwise I don't think random variables वाला topic वैसे introduce किया गया। So that's an interesting thing that will cover the next session that we have. ठीक है? So एक्सक्यूज हाँ मी हाँ बोलो कश्मी। हाँ, सर, अभी तक आपने कोई भी वीडियोस, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखने नहीं बोला है ना? नहीं वैसे मैंने नहीं कहा है, बट आई वुड सजेस्ट दैट बेसिक्स करके कुछ वीडियो हैं, ठीक है, वो YouTube आप पे। लोग देख यस सकते हो। सर। हाँ, ओके, ठीक है, तो वो हम क्योंकि वापस नहीं डिस्कस करेंगे ना क्लास में? आई एम नॉट प्लानिंग टू डू दैट, बट अगर उसमें कोई पार्ट में बहुत दिक्कत आ रही हो तब मैं आई एम हैप्पी टू लाइक टेक दैट अप। ऑलराइट, थैंक यू सर। Yeah, because I want to get into the masala of it, right, which is random variables starting the next class, right? तो आप basics वाले, जैसे ये मैंने एक दिन बहुत पहले कराया था, I don't know whether a lot of you all joined at that point of time. So मतलब it was very basic, right? Things like histogram क्या होता है, right? Bar graphs क्या होते हैं, mode क्या होता है, median क्या होता है, mean क्या होता है। I'm sure you all know a lot of it. So एक बार खुद Yes, sir. देखो, नहीं समझ में आया, I'm happy to help, और कुछ नया करेंगे और मजा आएगा, उस पॉइंट से मैं वो देखने को कह रहा हूँ, ठीक है। सर Okay, sir. उसी वाली क्लास में जिसमें हिस्टोग्राम और ये सब करवाया था, हाँ उसमें हाँ, आपने एक जगह हमें ये कॉन्सेप्ट बताया था कि जब हम ये हिस्टोग्राम्स को जब हम डिफरेंट क्लास में,
हाँ डिफरेंट क्लास विड्थ में करते हैं तो हम हाँ उसकी क्लास विड्थ से डिवाइड करते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट Right. एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। श्योर देखो, हिस्टोग्राम इज वन ऑफ दोज थिंग्स। और पहले तो ये बताओ, हिस्टोग्राम और बार चार्ट में फर्क क्या होता है? कॉन्टिन्यूस होता है हिस्टोग्राम में। कंटिन्यूअस होता है, अग्रीड। व्हाट एल्स? सर एक बात बताओ, बार चार्ट में केवल हाइट देखते हो और हिस्टोग्राम में विड्थ भी। एरिया देखते हो, हाँ है ना? एरिया। हाइट भी इंपॉर्टेंट होता है और ब्रेथ भी प्रॉब्लम होता है, मतलब इंपॉर्टेंट होता है जो आप कह रहे थे, विथ भी इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो जब हाइट और ब्रेथ दोनों देख रहे हो तो क्या देख रहे हो? एरिया देख रहे हो, है ना? तो अगर मैं आपको कह रहा हूं कि 0 से 500 में 6 लोग हैं और 1500 से 300 में 13 लोग हैं, राइट? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? कि 0 to 500, 500 to 1000, 1000 to 1500 and 1500 to 3000, ऐसा करके कुछ बनेगा ग्राफ, राइट? कितने कितने लोग थे? 6, 10, 9, 13, राइट? So if I draw 6, 10 for example, right? Again assume कि ये equal space था यार, ये equal लग नहीं रहा है, नो assume कि ये equal था, रुको थोड़ा सा चेंज कर ही देते हैं ना, इंटरसेक्शन बीच में होना चाहिए इसका, 500, राइट? तो 6, 10, फिर क्या था तीसरा वाला? 9 ना? तो 9 कुछ यहाँ आएगा। और अगर मैं 13 ऐसा बना दूं तो ये एरिया देख के लगेगा कि मैक्सिमम डेटा यहीं बैठा है, जबकि ऐसा है नहीं। जबकि ऐसा है नहीं। यहाँ पे इतना ही डेटा है, जहाँ पे इतना ऑलमोस्ट इतना ही डेटा है ना, राइट? 6, 10, 9 इतना ही डेटा है, बट इसका एरिया इससे 4 गुना है, ऑलमोस्ट 4 गुना से भी ज्यादा है, which is not fair. करेक्ट। Agreed? So what do? We need to make sure that the area is indicative of the frequency in that width, correct? है ना? तो मैं क्या करूंगा, मैं रिकॉग्नाइज करूंगा मेरा लोएस्ट विड्थ क्या है। मेरा लोएस्ट विड्थ इस केस में 500 है। यस। इसमें कितने 500 आ गए? 1500 से 2000, 2000 से 2500 और 2500 से 3000, राइट? अगर आप इमेजिन करो, इसमें 500 के 3 बिट बैठे हैं ना, तीनों को कंबाइन करके एक बड़ा बना है, तो मैं क्या करूंगा, उसको 3 से डिवाइड कर दूंगा। सो नाउ दिस विल गेट एडजस्टेड to become something like this, which is more appropriate. समझे? जी, got it. Okay, so it's about that in histograms you're looking at area of your bars instead of just the height of your bars, right? That is the key concept here. Now again, for people who have not attended this particular session, जो आज के I think 2-3 हफ्ते पहले लिया गया था, look at the videos I will suggest. उसमें अगर कोई दिक्कत आ रही हो प्लीज मुझे पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम हैप्पी टू एड्रेस एज मेनी डाउट्स फ्रॉम देयर, बट माय पर्सपेक्टिव इज दैट आई वांट टू स्टार्ट ऑफ विद, कैन यू still see my screen? I'm not sure whether you all can see or not. Yeah, It's visible. cool. So we did a bit of basic probabilities क्योंकि II has a habit of asking these basic probability questions, and believe me or not, when you are done with a few chapters of CS1 where you look at a bit more advanced statistical concepts, you tend to forget basic probability, right? That's why we have got that out of our area right now, and then we'll start with random variables in next class. Okay? Yeah? Does that make sense? सर हमें CM1 के लिए स्टैटिक्स बेसिक्स कितना आना चाहिए? यार, they assume that you have ASET knowledge. Yeah? Okay. Right? So it's good to know stat basics end to end, right? क्योंकि यार बेसिक प्लॉटिंग तो कहीं भी पूछ सकते हैं। हाँ, रैंडम वेरिएबल का लॉजिक उतना नहीं चाहिए जो अपने नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे। Okay? Cool. Perfect. In that case, I'll close for today. Yeah. See you all next class, guys. Thank you, everyone. Bye bye. Thank you. Thank you.